હલો. હા બોલ અમે. હા સર, કોલ ચાલુ છે, મચ કરું છું. હા બોલ, કોણ છે? ઓકે, એક સેકન્ડ. હા હેલો. The person you હલો. હા જી બોલો. રાજુ કાકા, હા આ કોલ ઉપર ચાલુ છે. હવે આ કે છે અત્યારે કસ્ટમર કેર ઉપર જ છે અને એ લોકો હા. કે છે કે આપણે જે ફ્લેટ બુક કરાવેલો હતો ને હમ. આપણે થાના માજીવાડામાં, તો હા. અત્યારે પરિસ્થિતિના કારણે મેં જે તમને પહેલા સમજાવ્યું હતું એ પ્રમાણે આ લોકો કે છે કે ફ્લેટ કેન્સલ નહીં થાય. કેન્સલ નહીં થાય એટલે શું? ટર્મિનેબલ નથી એમ કે આપણે એગ્રીમેન્ટ થઈ ગયું છે પણ એ કે છે કે ટર્મિનેબલ ના નથી. હોય એમ કેમ થાય ભાઈ? આ વાત કરાવો. કોણ? ચાલુ છે. હા Hello? કોને? હેલો. હા યસ બોલો. You are saying that this thing is not cannot be finished, cannot be terminated. Yes, sir, because the customer and there's a mutual agreement which has been happened at the registrar office. As per the agreement, the unit is non-terminable while it is under construction. Madam, how can see you have given so many terms and conditions on him and you have put him into a loan. So now there are 4 parties and he has to pay EMIs. How is it possible that it is not terminable? How anything, even a marriage is terminable. Let alone this, even if there is a marriage, it is terminable. Where is the question of agreement not being terminable? હલો સર. હલો મેમ. આપણે હલો રાજુ કાકા, આમાં આપણે આ જે એગ્રીમેન્ટ કર્યું હતું ને એમાં આપણે છે ને આપણા તરફ આપણા શું કહેવાય કસ્ટમરના માટે છે ને એક બી એવો ક્લોઝ નથી જે આપણા ફેવરમાં હોય. બધા જે છે ને એ બધા આપણે આ લોકોના ફેવરમાં જ છે લોઢાને તરફ. રાઈટ, મેં જોયું બરાબર છે. કેમ થોડી ચાલે? મેડમ આર યુ ધેર? Hello? Yeah, I'm there. Yeah, okay. See, listen, if it is, what is the meaning of not terminable, I don't understand. But let me tell you this very simply. Coronavirus is a problem not only for you. It is also problem for others. It is also problem for buyer. It is not only problem for you. Correct? Absolutely. It is, you know meaning of force majeure? Yes. You heard of force majeure, right? You know what force majeure is, right? Okay. So you know that builder lobby has gone to RERA and they have said because of the coronavirus we are not able to give on possession date and all that. You know that all that, right? And so they said it is force majeure, it is act of God, it is like, like floods and all those things, tsunami and floods and all. So we are not able to give because workers are not coming and all that, and so many reasons they gave. And RERA said, okay, 6 months time, don't pay. I mean, don't give possession. Extension of 6 months from RERA date. You know that, right? You know it or not? No, I'm aware about it. You are aware. So listen. Yeah, I'm listening. Yeah. See, same force majeure is there for people who have to pay. They have to pay EMIs. They have to pay, they have financial liabilities. So you tell me this, what happens if he is not able to pay? Which is actually, now that is the problem, right? The problem is he is not able to pay. He is not able to pay because job problems. Job problems are everywhere. Even you must be working on 50% pay cut, yes or no? आपका 50% सैलरी कम हो गया, हाँ के ना बोलो? I cannot disclose that. I know that, exactly. आप डिस्क्लोज मत करो, लेकिन मैं जानता हूँ आपका हकीकत, आपका रियलिटी क्या है वो मैं जानता हूँ. प्राइवेट सेक्टर में हर जगह पे 50% पे कट हो गया है. किसी का अच्छा ये चलता है तो 20% 30% पे कट होता है. अच्छा नहीं चलता है 50% पे कट होता है. उनका जॉब चला जाता है, राइट? उनका जॉब चला जाता है. अग्री नहीं करेगा तो उनका जॉब गया. इट इज वेरी सिंपल. इट इज माई वे और हाईवे. अभी आप लोग भी मजबूरी में हो, दूसरों को भी मजबूरी होता है ना.
उनका भी नौकरी जाएगा. He is not able to pay. He is not able to pay. Now, if you are saying no, sir, you are not able to pay, it is okay. You are not able to pay EMI, it is okay. Even then, this is, flat is in your name. Very good, excellent, बहुत अच्छा है. But then there should be no terms and conditions. ऐसे नहीं होना चाहिए कि नहीं आपने पे नहीं किया हम आपको पेनल्टी लगाएंगे and all that. That is the main thing. There should be no strings attached. And another thing, see, everybody is on good faith here. Everybody wants to buy a flat and everybody is working on good faith. ऐसा कोई ऐसा ही मजाक में पैसा देता है क्या? सब लोगों को फ्लैट खरीदना है, इसीलिए तो वो टोकन दिया. भाव में कितना दिया था टोकन? ટોકન આપણને દિયા था 4 લાખ. આપણે કાકા આપણે બધું થઈને છે ને 4 જેટલું આપેલું છે. એમાંથી હવે આ 3EMI નું જે છે એ અરાઉન્ડ 2000 આપ્યા છે. અને ઓલું આપણે ઓલી બીજી એક લોન નાની લોન હાલે છે ને એના આપણે 60,000 આપી દીધા છે. એટલે બધું મળીને અરાઉન્ડ. मैडम इतना सब दिएला है, इतना सब देते हैं, ऐसे थोड़ी देते हैं कोई. आप सोचो ना, कोई ऐसे मजाक में कोई थोड़ी देता है. अभी पैसा वापस करो, सिंपल बात है. नहीं होता है, आगे नहीं बढ़ सकते हैं. अब आगे नहीं बढ़ सकते आप कहते हो पीछे नहीं हट सकते, ऐसे कैसे हो सकता है मैडम? आप सोचो ना. आप प्रैक्टिकल बोलो, हाउ इज इट पॉसिबल? See, talking practically, I completely understand the current situation, pandemic, which has affected all sectors, including individuals. I understand the situation, sir. Yes. We can try and explore the options for this customer in regards to the current situation and the current demand which is due, sir. Okay, you do one thing. What are you saying? Explore the options. Explore the options. आप explore the options के you write and give him options. Option 1 this, option 2 this, option 3 this. आप उसको लिख के दो. આપણે ઓપ્શનની કોઈ વાત જ નથી આમાં. આપણે રાખવા જેવો જ નથી કેમ કે મારે અહીંથી નીકળવાનું છે મુંબઈમાંથી. એટલે આપણે ફ્લેટ કોઈ ઓપ્શન જે છે ને હવે આપણે આ લોકોને એ પૂછવાનું છે કે આપણે આમાં नहीं ऑप्शन मतलब निकलने का ऑप्शन. अभी एंट्री का ऑप्शन नहीं, एग्जिट ऑप्शन. हाँ. We are not talking entry option. Entry there is no option now. We are exiting. I got it, but there is no cancellation option, sir. So how can it not be cancellation option? You tell me one thing. You are saying it is like this. एक बार you go in ये बक्से में अंदर घुस गए फिर वो बक्सा खोल नहीं सकते. It is that kind of thing. How can it be? How can it be? It is illegal. There is no exit option means what? There is exit option means okay, this happens, you do this, we will do this. There has to be some option, no? How can you say there is no option? What is there is no exit option? How is that even? I mean, ऐसा कैसे होता है? आप समझाओ ना, कॉमन सेंस में समझाओ ना मुझे. कॉमन सेंस सीख. You are saying there is no option. How there is no option? If you didn't give the house, is there an option? If you don't deliver the house, is there option? Or you are saying no, there is no option. You can't deliver the house. Suppose भगवान न करे लेकिन ऐसा होता है कि आपको बिल्डर को बोलना पड़ेगा भाई साहब it is not possible, I am not able to deliver. मैं आपका घर नहीं बना के दूंगा. ऐसा होता है ना, ऐसा सिचुएशन होता है. दिवाला निकल जाता है लोगों का. आपका नहीं निकलना चाहिए, मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ, लेकिन ऐसा होता है दुनिया में. ऐसा होता है मैडम. हम लोग भी बिजनेस किया है तो हमको मालूम है कि क्या होता है. तुम आप ऐसे मत बोलो. What is the meaning of there is no option? I said, what is the meaning? How is it possible? Now tell me in the current, अभी जो है
क्या करने का? What he is supposed to do? You tell me. Cancellation तो नहीं हो पाएगा. As you said earlier that we can try and check some options for him about the current demand which is raised. As per the forecast, his next demand of RCC level 6 is going to be raised to 10. You are raising demand. If he cannot comply with your demand, then what happens? You tell me that. The He cannot pay. Will remain outstanding and the account will still remain on his name, sir. The account will continue to remain on his name. It's completely at company's discretion that if we want to go ahead and terminate. You mean to say that even if he cannot pay, you will, आप लोग ब्याज पे ब्याज चढ़ाते रहोगे, ऐसे कह रहे हो? ब्याज चढ़ते रहेगा, उसका लाखों का हिसाब से करोड़ों का हिसाब हो जाएगा, अब्जों का हिसाब हो जाएगा. 50 साल के बाद यू कैन ट्राई एंड टेक. मालूम नहीं उसका कितना 50 करोड़ होगा कि 100 करोड़ होगा. फिर ले लो उससे 100 करोड़ 50 साल के बाद. कैसे ले सकते हो देख लो. इट इज नॉट प्रैक्टिकल मैडम. आप सोचो ना, जो आदमी बोल रहा है कि मैं नहीं दे पा रहा हूँ, वो सामने से बोल रहा है नहीं दे पा रहा हूँ, नौकरियात आदमी है, उसका जॉब के ऊपर ऐसा टेंशन हो गया है, पूछो मत. हमको मालूम है. ऐसा ऐसा परफॉर्मेंस लिमिट्स, ये वो परफॉर्म क्या बोलते हैं आप लोग, परफॉर्मेंस टारगेट सीधा डबल कर दिया. तो ऐसा सब इसका क्या हालत होता है आप जानते हो? इसको कितना ब्लड प्रेशर हो गया आप जानते हो क्या? आपको मालूम है क्या? बहुत है, बहुत टेंशन है. अभी इतना टेंशन होने के बाद आप क्या कहोगे कि हमको आगे बढ़ने का नहीं है, पीछे हटने का नहीं है, पैसा लेने का नहीं है, पैसा देने का नहीं, तो क्या करेगा आदमी? बोलो ना, क्या करेगा? सुशांत सिंह राजपूत जैसा करेगा क्या? और कोई रास्ता ही नहीं है क्या? हाउ, इफ ही इज नॉट एबल टू पे, व्हाट इज द सॉल्यूशन? यू टेल मी. उसको फैमिली पालने का है कि लोधा कंपनी पालने का है? उसने लोधा कंपनी को पालने का ठेका ले रखा है क्या? नहीं है ना. यू टेल मी व्हाट इज द सॉल्यूशन. देयर इज टू बी अ सॉल्यूशन. यू कांट से नहीं, सॉल्यूशन ही नहीं है. ऐसे थोड़ी सॉल्यूशन होता है. लोग फिर सॉल्यूशन निकालते हैं यार, सुशांत सिंह राजपूत वाला सॉल्यूशन निकालते हैं मैडम. फिर आपके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी बैठ जाएगा. मत करो ऐसा सब, मत करो ऐसा. प्लीज अंडरस्टैंड. लोगों का मिजरी का फायदा मत उठाओ. लोग मजबूर है, उनका हालत खराब है, वो पैसा नहीं दे सकते हैं. आप अपना मैनेजमेंट को बोलो. मैं समझता हूँ आपके पास आपका कोई अथॉरिटी नहीं है, मैं समझता हूँ. आपका कोई भी पावर नहीं है, मैं समझता हूँ. हम लोग समझते हैं मैडम, हम भी नौकरी करते हैं, हमको मालूम है. लेकिन आप मैनेजर्स को बोलो, ये भौमिक आपका पहला कस्टमर नहीं है जो बोल रहा है कि मैं कोरोना वायरस के कारण नहीं दे सकता हूँ. पहला कस्टमर है क्या? आपको ऐसा कॉल तो आता होगा ना. टेल मी ट्रूथफुली. Yes, sir. Yes, sir. You are getting calls for withdrawal, no? Yes, sir. So he is not first customer. He must be, I don't know कितना 50, 100, 200, 500 कितना नंबर का कस्टमर मुझे मालूम नहीं. लेकिन जितना भी है, एक बार आप सोचो, जरा इंसान की तरह सोचो, ह्यूमैनिटी के साथ में सोचो, और अपना मैनेजमेंट को समझाओ ना. उनको बोलो ना. कैसे ऐसे थोड़ी चलेगा, वो कैसे चलाएगा? अभी मैडम भौमिक स्ट्रांग है, वो ऐसा सब नहीं करेगा. लेकिन आप जस्ट एक बार सोचो, कोई वीक आदमी होगा, उसका फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा वगैरह, अकेला बेचारा मुंबई में है और ऐसा फंस गया है, और आप बोलोगे निकल नहीं सकता है, तुमको पैसा देने का ही है, हम तुमको डिमांड भेजेगा. और डिमांड किस बात का? उसने आपसे कुछ लोन लिया है क्या? उसने आपका कुछ भी लिया है क्या? आपने उसको कुछ भी बेचा है क्या? कुछ भी दिया है क्या? अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है. आप बेचोगे, आप लोग बेच दोगे वो यूनिट को, दूसरा किसी को बेच दोगे. वो यूनिट आपका किधर भी नहीं जा रहा है ना. उस
तो आपका यूनिट किधर भी गया है क्या? इसने आपका लोधा कंपनी का कोई भी नुकसान किया क्या? नहीं ना। तो नुकसान नहीं हुआ है तो उसे ऐसे पकड़ रहे हो, पैसा दो पैसा दो। किस चीज का पैसा दो भाई? यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड, किस चीज का पैसा देने का? वो गुलाम बना दोगे क्या उसको? वो पैसा नहीं दे सकता है, गुलाम बनाओगे? क्या करोगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ये नॉन टर्मिनेबल अग्रीमेंट का मीनिंग क्या है? हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा होता नहीं है मैडम, ऐसा नहीं होता है ना। आप सोचो ना, ऐसा होता है क्या? आप ही सोचो मैडम। आप कोई भी चीज, आप एक कार लेने को बुक करते हो, अब कैंसिल करने का मतलब कैंसिल करने का, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। मैडम आगे का रास्ता बोलो, अभी क्या करने का? अब बात करके बोलो। करंट डिमांड आउटस्टैंडिंग है सर, वो करंट डिमांड आउटस्टैंडिंग के लिए मैं ट्राई करती हूँ। हम कुछ एक्सटेंशन। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग मतलब उसने आपसे पैसा लिया है क्या? या आउटस्टैंडिंग क्या है? आपने डिमांड रेज किया है, आपका डिमांड है। हाँ मैडम, पेमेंट उनको करना है सर। पेमेंट करना है मतलब आपका डिमांड है। पेमेंट करना है मतलब क्या? आपका डिमांड है, आपका कंपनी का डिमांड है। एब्सोल्युटली। आपका कंपनी ने ऑलरेडी लोन कंपनी से पैसा लेके रखा है कि नहीं लेके रखा है? इनका केस में 14.5 लाख 14.67। तो लोन कंपनी से ऑलरेडी पैसा लेके बैठे हैं ना। हाँ 14.5 तो फिर अभी किस चीज का डिमांड? अभी वो भी वापस करो। वो अभी क्या डिमांड है? अभी कैसा डिमांड है? लोन कंपनी से पैसा लिया है, अभी किसका डिमांड है? आप क्यों डिमांड कर रहे हो? लोन कंपनी ने आपको पैसा दिया है ना। पूरा पैसा नहीं दिया है सर, जितना डिमांड रेज हुआ है उतना ही पेमेंट किया है ना। डिमांड रेज होगा तब वो लोन कंपनी पेमेंट करेंगे। आप लोग जैसे जैसे डिमांड रेज हुआ वैसे वैसे उन्होंने पेमेंट। तो अभी स्टॉप पेमेंट करने का, अभी स्टॉप पेमेंट करेंगे क्योंकि आपने अभी अपने भौमिक को कुछ भी दिया नहीं है। आपने भौमिक को 1 पैसे का वैल्यू दिया नहीं है, 1 ईंट दिया नहीं है, बराबर। आपने उसके हाथ में 1 ईंट भी दिया नहीं है, यानी कि आपने 14.5 लाख के आगे कुछ भी दिया नहीं है। उसने लोन ले लिया है। लोन कंपनी ने आपको पैसा दिया है? पूरा नहीं दिया है। पूरा नहीं दिया है मतलब आपने 1 ईंट नहीं दिया है, पूरा काहे का देने का? आप बोलो ना। उनकी पूरा नहीं मांग रहे हैं ना सर, वही तो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं हम। उनका डिमांड 1 रेज हुआ है लेवल 1। आपका फ्लैट कब तैयार हो रहा है पहले ये बताओ? फ्लैट कब तैयार हो रहा है? 1 मिनट का। आपका પહેલા ફ્લેટ ક્યારનું છે? 2022 નું કહેતા હતા પણ હવે 2022 નહીં થાય, 2023 માં જાય। 2023 નું ખબર નહીં 2024 માં भी આપે। આપણે કઈ નક્કી નહીં આ લોકોનું। बराबर। अभी मैडम देखो 2022 2023 का आप लोग डेट बोल रहे हैं? नहीं, हम लोग 2022 ही बोल रहे हैं सर। आप लोग 2022 बोल रहे हो। अभी 2022 का 2000 आपने 23 बोल दिया एक बार, या 24 बोल दिया। बोलोगे मजदूर नहीं आया, मैं क्या करूं? तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें? हम लोग मजबूर है कि नहीं है? हम लोग क्या करेंगे बोलो? हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम लोग सिर्फ आपको पैसा देके बैठने का। लोन कंपनी ने कितना? 14 लाख 14.5 लाख देके लोन कंपनी ने 14.5 लाख दिया है। फिर भौमिक ने प्लस 4 लाख दिया है, ठीक है। 18 लाख लेके बैठे हो आप लोग, लेके बैठे हो, देके नहीं बैठे हो। उसके सामने 1 ईंट का फायदा नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। अभी नॉन टर्मिनेबल अग्रीमेंट क्या है ये मुझे आप प्लीज लिख के भौमिक को भेजो।
ऑलरेडी भेजा है। डोमिक सर प्लीज फॉरवर्ड द वीडियो। नॉन टर्मिनेबल अग्रीमेंट क्या है, ये क्लॉज हमको दिखाओ। वहाँ पे लिखा है सर। क्या लिखा है? नहीं, आपका लिखने से नहीं होता है मैडम। देखो अग्रीमेंट ऐसा है, सर अभी की लिख के मैं नॉन डिस्ट्रक्टेबल मोटर बाइक बोलूंगा तो वो मोटर बाइक नॉन डिस्ट्रक्टेबल नहीं हो जाता है, उसको फिर बाद में डिस्ट्रॉय करके दिखाना होता है कि ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। नॉन टर्मिनेबल अग्रीमेंट नाम का चीज आप लिखोगे तो लिख दिया, ये इस दुनिया में नहीं है। दोनों साइड का जो लोग है, पार्टीज है, वो अग्रीमेंट का पालन करेंगे तो नॉन टर्मिनेबल होता है, वो अग्रीमेंट पूरा होता है। लेकिन साइन किया है, अग्री किया है सर। क्या, किस चीज का? पेमेंट का अग्री किया है ना, पेमेंट का अग्री किया है ना, पोजेशन भी अग्री किया है, और कैंसिलेशन नहीं होगा वो भी अग्री किया है। तो ऐसे शादी करने के टाइम में भी हम लोग कैंसिलेशन नहीं होगा ऐसे ही बोल के अग्री करते हैं, लेकिन अगर कैंसिलेशन करना है, शादी नहीं चल रही है तो कुछ कर सकते हैं क्या? टॉक अबाउट दैट ओनली सर। प्लीज अंडरस्टैंड, there is no such thing in this world as non-terminable agreement. No, ऐसा है ही नहीं। I sympathize with the situation and I do apologize what is going on right now, sir. But if you sympathize, at any point of time, sir, we will not be able to cancel the unit. I can definitely personally try. If you don't cancel the unit, then you can keep sending. आप जितना भी नोटिस भेजने का है भेजो। Okay, sir. I'll make a note. आप भेजो, आप नोटिस भेजो, हम लोग देखते हैं। फिर हैरेसमेंट का केस बनेगा कि क्या बनेगा, ऐसे करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। I do apologize on that, sir. No, हम भी अपोलोजाइज करते हैं, हमको भी लगता है, बट यू आर नॉट टॉकिंग रियलिस्टिकली। दिस इज नॉट, ये सही नहीं है, ये बहुत गलत है। I'll take this as feedback from your end if you felt that, sir. But I don't want to give you any wrong information right now. At no point of time we will able to cancel the unit, sir. We can try and explore some options for the customer. Maybe we can try an extension of the demand. Explore option तो आप, you give option in writing. Explore options for payments. Explore options for payments, not for cancellation, sir. If he is not going to pay, that is option. One option is इससे सिंपल ऑप्शन होता है, मेरा पैसा मैं जेब में रखता हूँ, मैं पे नहीं करेगा, ऑप्शन। ऑप्शन वो नहीं दे सकेगा, सुनो, जॉब लॉस हो गया, इनकम नहीं है, तो फिर ऑप्शन क्या होता है? सुशांत सिंह राजपूत ऑप्शन, और कोई ऑप्शन है? होगा उनका, तो उनको बोलिए हमारे साथ में टर्मिनेशन लेटर सेंड करने के लिए। आप लोग एक काम करो, जॉब दे दो उसको, जॉब दे दो। यू से यू आर गोइंग टू गिव जॉब टू दिस यंग मैन एंड हिज वाइफ, हो जाएगा। नॉट से दैट यू आर अज्यूमिंग, लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। बोलो। आई सेड इफ कस्टमर्स, ऐसे होना नहीं चाहिए, बट अगर उनका जॉब लॉस हुआ फ्यूचर में, उनको बोलिए हमारे साथ टर्मिनेशन लेटर सेंड करने, हम इंटरनल टीम से डिस्कस कर लेंगे उनके लिए। तो जॉब लॉस होने के बाद टर्मिनेशन लेटर कर सकते हैं, करेक्ट? नहीं, उनको शेयर करना है सर। आई रिपीट, अच्छा, अगर उसका जॉब लॉस होता है, जॉब लॉस होता है तब जाके आपको वो टर्मिनेशन लेटर भेजने का। प्राइवेट सेक्टर में हो, आप प्राइवेट सेक्टर में हो, टर्मिनेशन लेटर, पहली बात, एक सिंपल बात कह रहा हूँ आपका, मैं ये जानता हूँ प्राइवेट सेक्टर में कोई कमेंसमेंट लेटर भी नहीं देता है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं देता है, कोई सैलरी स्लिप भी नहीं देता है, और कोई कैंसिलेशन लेटर भी नहीं देता, टर्मिनेशन नहीं देता है। वी आर रिसीविंग वेरी वेल एंड डोमिक सर आल्सो रिसीव्ड वेरी वेल, दैट्स व्हाई हिज लोन्डर्स हैपेंड सर। हाँ ठीक है, तो देता भी होगा, इसको मिला होगा। अच्छा, तने મળ્યું છે ભઈલા? આ તો મળ્યું છે, બટ આ તો નોનસેન્સ જ કહેવાય ને કે આપણે જોબ લોસ થાય એના પછી આપણે ટર્મિનેટ जॉब लॉस होने के बाद, हाँ, दैट इज मतलब ત્યાં સુધી આપણું પે કરતું જવાનું। ના, બરાબર, સાચી વાત। આ લોકોના માટે કમાઈએ છે કે આપણે આપણા માટે કમાઈએ છે, મને એટલું ખાલી સમજાવો ને। जॉब लॉस होने के बाद आपके दरवाजे पे रोते रोते आना चाहिए कस्टमर, रोते रोते आना चाहिए कि मेरे पास दो ऑप्शन है, एक सुशांत सिंह का ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है, ऐसा बोल के आना चाहिए। मेरे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं EMI दे नहीं सकता हूँ,
ऐसा बोल के, और अभी तक जो भी EMI में दिया है वो वापस मिलेगा क्या वो कंडीशन में, पहले ये बताओ. Somebody is going to give back the money. You are going to give back the money that he has given as EMI. तब आप यही सिंपल बोलोगे ना कि सर ठीक है. EMI भरने के लिए, अरे काका, अरे इनका EMI भरने के लिए हम थोड़ी ना तो जॉब लॉस कर सकते हैं. ये कैसा बेहुदा मजाक है. आप इतना कैसे अपने प्रोफेशन से गिर सकते हो. उन लोगों, वो मैडम ने खुद का अगर किसी लोन लिया होगा तो लोन वाले पीछे पड़े होंगे और बोल रहे होंगे कि भाई आपका हम तब तक लोन नहीं बंद करेंगे जब तक आपका जॉब चल रहा है. हाँ, अरे ये तो मतलब बहुत ज्यादा कस्टमर अभी बोल रहा है. गिरी हुई चीज ऐसे मैंने सुना ही नहीं पहले. ऐसे जिंदगी में मैंने कभी नहीं सुना. इतना बेहुदा, इतना बदतर मजाक कोई करता है क्या? हाँ, आपको कोई शर्म है क्या मैडम? आपको बोलने से पहले आप सोचते हो क्या? नहीं भैला એની ભૂલ નથી. આ તો એ લોકો કંપની છે અને કંપની એને કે છે એટલે એને કરવું પડે છે. અરે પણ કંપનીમાં પૈસાની લાયકાત તો હોય ને કાકા. આવી રીતના થોડું કઈ ચડી બેસવાનું હોય કે તમે નોકરી કરો તો તમે લોન ભરશો? ના, આ તો નોકરિયાત છે યાર. આ નોકરિયાત છે. આની ઉપર શું કહેવાનું यार. मैडम तुम्हारा तो कोई गलती नहीं है. तुम्हारा कोई गलती नहीं. ठीक है, तुम अपना जॉब कर रहे हो लेकिन तुम्हारा कंपनी बहुत બંકસ કંપની है. बहुत બંકસ. અરે આવા લોકોને તો યાર બધાની પબ્લિકની સામે આ વસ્તુ નાખવી જોઈએ કાકા. આવું થોડું ચાલે યાર. આ બધા 4 લોકોની વચ્ચે આ વસ્તુ કહીશું ને ત્યારે આ લોઢાવાળોને છે ને પોતાની ઇજ્જતની ખબર પડશે. क्या લોકો પોતાની જાતને શું સમજે? मैडम ऐसे ये बहुत गलत है. आप ऐसे करो. टर्मिनेशन का ऑप्शंस क्या है एक लिख के भेजो. अभी बोलने से कोई फायदा नहीं है. हम लोग आर्ग्यू करेगा, हम लोग बात करेगा, कुछ फायदा नहीं. बहुत हो गया. अभी आर्ग्यू नहीं करने का है. हम लोग कितना बहसबाजी करेगा, क्या करने का है? बहसबाजी करके क्या करने का है? ओरल बोल के थक जाएगा. आप भी थक जाएगा, मैं भी थक जाएगा, सब लोग थक जाएगा. ये सब नहीं करने का है. सिंपल ऐसा करते हैं, आप लिख के भेजो टर्मिनेशन ऑफर नहीं है. ओके, या फिर आप लिख के भेजो, एक बार लिख के भेजो ये टर्मिनेशन. और दूसरा आप लिख के भेजो, अभी जो आपने बोला ना कि टर्मिनेशन लेटर हो गया तो आप हमको टर्मिनेशन लेटर भेजो, उसके बाद में हम कुछ करेंगे, ऐसे लिख के भेजो. आप जो बोल रहे हैं ना वो लिख के भेजो. हाँ, जो भी आप बोल रहे हैं ना लिख के भेजो. ये टर्मिनेशन लेटर देंगे तो कुछ करेंगे वगैरह, जो भी आप बोल रहे हैं एक बार लिख के तो भेजो. देखते हैं, हम लोग भी सोचते हैं. ठीक है, आप पूरा लिख के भेजो, लेकिन मैडम डिटेल में लिख के भेजो. डिटेल में लिखो. फिर ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं आपने ओरल में कुछ बोला फिर लिखा हुआ नहीं है, फिर हमको आप एकदम ऐसा वो मत कर. ओरल में जो भी बोला है वो भी सब रिकॉर्डेड है. कुछ भी गलत नहीं बोला. नहीं, वेरी गुड. And I will write in detail in the email also, sir. Don't worry, okay? I will send it to you. नहीं, रिकॉर्डेड है. वेरी गुड, अच्छा है. आपका ऑफिस आपके ऊपर नजर रख रहा है, हमारे ऊपर भी नजर रख रहा है. गुड, अच्छा है. ठीक है, वो कस्टमर का वॉइस रिकॉर्डिंग करता है, अच्छा है. अभी आपका कस्टमर्स को भी मालूम होना पड़ता है चाहिए कि कस्टमर केयर के साथ. आप कस्टमर केयर है कि सेल्स है? कस्टमर केयर. तो कस्टमर केयर के साथ बात करेगा तो वॉइस रिकॉर्डिंग होएगा. ऐसे सब समझ के लेने का, कस्टमर को समझ के लेने का कि लोडा कंपनी के साथ बात करेगा तो वो रिकॉर्डिंग करेगा. अच्छा है, बहुत अच्छा है. ठीक है, अभी आप जो भी बोला है वो लिख के भेजो. टर्मिनेशन लेटर का लिख के भेजो. ऑप्शन नहीं है वो लिख के भेजो. ऑप्शन है वो लिख के भेजो. ऑप्शन तो नहीं है, वो मैं सेंड कर देती हूँ डिटेल्स ईमेल पर. अग्रीमेंट में भी मेंशन है, वो भी आप रेफर कर सकते हो. और इनकेस अगर जॉब लॉस होता है तो फिर क्या ऑप्शन कर सकते हैं, आप लेटर सेंड करिए, हम चेक कर लेंगे. वो भी लिख के नहीं, और नहीं, आप जॉब लॉस होता है तो क्या ऑप्शंस होता है वो ही लिख के भेजो. आप टर्मिनेशन के बाद में हम आपको टर्मिनेशन लेटर देंगे, उसके बाद में आप हमको ऑप्शन क्या है बताओगे, वो नहीं चलेगा. तभी आप क्या ऑप्शन देते हो वो लिख के भेजो. तभी
आदमी का एक डिग्निटी भी होता है। आपके सामने वो अपना टर्मिनेशन लेटर लेके आए, आपको, आप गवर्नमेंट एजेंसी हो क्या? आपको अर्जी लिखने का होता है क्या कि आप अनएम्प्लॉयमेंट हो गया तो आप उसको बेनिफिट देगा? ऐसे ऐसे वो क्या है ये? ये बहुत गलत बात है मैडम, बहुत गलत बात है। ये बहुत गलत बात है। आप लोग गवर्नमेंट नहीं है, आप लोग लोधा कंपनी है, आप गवर्नमेंट नहीं है। आप लिख के भेजो कि टर्मिनेशन अगर हो गया तो टर्मिनेशन लेटर रिसीव होने के बाद, अच्छा अनदर और एक मैं बात बोलता हूँ, ठीक, પહેલા તે તારા વાઇફ ના નામે લીધું છે કે તારા નામે લીધું છે फ्लैट? हमारा नाम है, इनका नाम। हाँ, तो अभी देखो मैडम, और एक बात है, भौमिक ने लिया है खुद का नाम पे, अभी उसका वाइफ का भी जॉब लॉस हो गया है ना, इनका डबल इनकम है, डबल इनकम वाला फैमिली है। उसका वाइफ का जॉब लॉस हो गया तो उसका सिंगल इनकम हो जाएगा। अभी वो सिंगल इनकम में से वो ईएमआई नहीं भर सकता है, और आपका डिमांड जो भी है जैसा भी हो नहीं भरेगा, नहीं भर सकता है, बराबर है। अभी उसका वाइफ का जॉब लॉस हो गया तो वो टर्मिनेशन लेटर वो आपको दिखाने का, उसका वाइफ से आपका कोई लेन देन नहीं है, लेकिन वो वाइफ का टर्मिनेशन लेटर आपको देने का, ऐसा है? आप ये बोलते हो। सर, दो एप्लीकेंट कौन है? भौमिक सर, मैं और मेरा वाइफ कंचन। अच्छा। कंचन है ना, उनका नाम भी है अकाउंट पे सर। हाँ ठीक है, वो एप्लीकेंट होगा। ठीक है, ठीक है। तो मतलब कि उनका दोनों में से किसी का भी टर्मिनेशन हो गया। अच्छा, टर्मिनेशन नहीं है, सैलरी कम हो गया तो 50% सैलरी पे डाल दिया तो, सैलरी कम इसीलिए हुआ, इंसेंटिव कम किया तो, सिचुएशन सर, राइट मैडम, सिचुएशन कभी ना कभी इज गोइंग टू बी वेल, राइट? इट विल गेट ओके समडे, बराबर है। वेट फॉर दैट, कैंसलेशन इज नॉट अ ऑप्शन सर। तो आप लिख के भेजो, वेट फॉर दैट वाला ऑप्शन जो है ना, वो वेट फॉर दैट वाला जो ऑप्शन है वो एक बार लिख के भेजो कि व्हाट इज द वेट फॉर दैट ऑप्शन। दैट आप, हाँ, आप लोग कोई डिमांड रेज नहीं करोगे टिल 2022 या जो भी है, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाई करेगा कि अब कोविड नहीं रहा, ऐसा करके आप जो भी है, आपका जो भी है लिख के भेजो। आपका क्या ऑप्शन है एक बार हमको पता चले कि क्या ऑप्शन है, ठीक है? प्लीज सेंड एंड ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस प्लीज मैडम, दिस इज ऑल ऑफिशियल, कीप इट ऑफिशियल, ऑफिशियल में बोलो। ऑफिशियल ईमेल आईडी ओनली सर, यस। हाँ ठीक है, ओके પહેલા ચાલ હવે જો શું થાય છે એ લોકો શું કે છે। હા વાંધો નહીં કાકા, આજે એ લોકો કહીને તમને ફોરવર્ડ કરું, ચાલો। ભલે ભલે, ચાલ સારું સારું, ચલો ચાલો કાકા, વાંધો નહીં, ચાલ બાય, ઓકે, હા આવજે, આવજો।